Hello students, in this video lecture series on transformer, our today's topic is losses in transformer and efficiency of transformer. Clear? So the losses in transformer, there are two basic losses. First one is the constant losses and next one is the variable losses. Constant losses are those losses which doesn't depends on load. However the load, whatever the type of load, whatever the magnitude of load, these losses are constant throughout the observation. But variable losses are those losses which depends on the value of the loading. That means if the secondary current changes, then the loading also changes, then these losses changes. That is why these are known as the variable losses. Clear? ये तो दो क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन हो गए. अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन में होते हैं उनको हम चार बेसिक पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज द आयरन लॉस, नेक्स्ट वन इज द कॉपर लॉस, third one is the stray loss and fourth one is the dielectric losses. Last two losses are negligible. Last two losses बहुत कम होते हैं. तो जो दो basic losses हमारे पास में बचे वो दोनों basic loss हुए iron loss and next one is the variable losses or copper losses. Clear? So we are starting today's lecture with iron losses. ठीक है. अब आयरन लॉस में हमने पढ़ा हुआ है, इन आयरन लॉस देयर आर टू बेसिक लॉस, द हिस्टैरिसीस लॉस एंड द एडी करंट लॉसेस. क्लियर? हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट के लिए बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज द हिस्टैरिसीस लॉस. हिस्टैरिसीस लॉस, वी नो दैट in case of transformer we use iron core. There are two electrical circuit made up of the copper winding and there is an iron core which provide a path for the flux between the primary and the secondary winding. So hysteresis loss or iron loss occurs in that particular core. उस core में हमारे पास में hysteresis या आयरन लॉस क्या हो रहे होंगे, अकर हो रहे होंगे. और जैसे हमने पढ़ा हुआ आयरन लॉस दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, हिस्टैरिसीस एंड द एडी करंट लॉसेस. तो देखो हिस्टैरिसीस लॉसेस का केस हमने एलिमेंट्री लेवल मतलब 12th में भी पढ़ के रखा हुआ है कि व्हाट इज हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड इवन हमने फर्स्ट ईयर बीटेक में भी पढ़ के ये चीज़ रखी हुई है. हिस्टैरिसीस क्या है का कंसेप्ट सीधे सीधे आता है जब हम डोमेन थ्योरी को पढ़ के रखते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ डोमेन थ्योरी ऑफ एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने पढ़ा हुआ है, in case of any ferromagnetic material the domains, the dipoles are arranged like this. dipoles क्या होंगे, अरेंज होंगे इस तरीके से. there is no particular arrangement. या सिंपल सा हमने जो 12th में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है that is the concept of domain. इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. in case of ferromagnetic substance the dipoles of same direction are placed in particular sections. Those are known as domains. इनको क्या बोलेंगे, इनको domains बोलेंगे and domains are aligned in such a way so the effective magnetism is equals to 0. इनका effective magnetism क्या होगा, 0 होगा. But when we apply any external magnetic field then what will happen, the domains aligned at the same direction of applied magnetic field increases their size. जो डोमेन हमारे पास में उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे, वो अपने साइज को क्या कर लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं. क्लियर है? इफ वी इंक्रीज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंक्रीज करते आएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तो ये डोमेन का साइज भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. और एट एंड ऑल द डोमेन्स aligned in the same direction of the applied magnetic field. सारे के सारे डोमेन अलाइन हो गए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में. दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट. तो इसके आगे आप जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो दैट डजंट अफेक्ट ऑन दिस. ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. ठीक है. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का फैक्टर होगा. सिंस AC current is applied ऑन द कोर. AC करंट है तो AC
रिफ्लेक्स भी जनरेट हो रहा होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स भी जनरेट हो रहा होगा. ड्यू टू द अल्टरनेटिंग फ्लक्स व्हाट विल हैपन? The iron core is magnetized and demagnetized. So demagnetization and magnetization is responsible for the hysteresis loss. ठीक है, hysteresis में हमने पढ़ा हुआ था कि hysteresis losses occurs due to magnetization and demagnetization of any ferromagnetic substance. During magnetization, energy is stored in the substance ferromagnetic material, and during demagnetization, energy is released by the ferromagnetic material. ठीक है, ये हमारे पास में कंसेप्ट ये हमें पता है. तो यहाँ पे है क्या, हिस्टेरेसिस लॉस का रिस्पॉन्सिबल क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड बाय द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मोर देन द एनर्जी रिलीज्ड टू द सोर्स. एनर्जी स्टोर ज़्यादा होती है और एनर्जी रिलीज कम होती है. दिस डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिस्टेरेसिस लॉस. This energy difference is responsible for the hysteresis loss, and the hysteresis loss phenomena may be explained with the help of the hysteresis loop. ठीक है, तो hysteresis loop भी हमने पढ़ के रखा हुआ है. Hysteresis loop is this. This one is hysteresis loop. It is H. It is B. Clear? A point, point number B, point number C, point O, and here point E. Okay? So this is hysteresis loop. Actually, it is not the BH curve. BH curve is just a single line starts from O to B, but when magnetization and demagnetization take place, so this type of curve is formed. सारी चीजें हमें पता है. What is this? This is residual magnetism, coercive force. ठीक है, उसके लिए अभी ये बात नहीं कर रहे. This is residual magnetism, this is coercive force, and this curve represent path A to B represent the magnetization of magnetic material, and path C to B to C represent the demagnetization of magnetic material. ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? This is the residual magnetism. क्लियर? सो इधर पे हमें दिखाई पड़ा है कि जब हम मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, स्टिल there are some magnitude of magnetism remains in the core material, and that magnetism is known as residual magnetism. Clear? And to reduce this magnetism, we have to apply the negative value of H. That one is called the coercive force. Clear? तो ये हमारे पास में सिचुएशन है, इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे समझना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि why BH curve, why hysteresis loop is useful to calculate the hysteresis loss. इस BH कर्व, BH लूप से हम लोग ये hysteresis loss किस तरीके से निकाल लें, उसकी कंडीशन देख लो. देखो, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ H into B, unit of HB. If there is a curve, then एब्सीसा मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्डिनेट. एब्सीसा को मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डिनेट से तो हम क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं. ठीक है, तो H और B को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया अंडर द कर्व फॉर एनी गिवन सेक्शन. ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व का केस क्या आया, H का यूनिट हमारे पास में क्या है, H का यूनिट हमारे पास में दिया गया है, H इक्वल्स टू व्हाट, Ni अपॉन L. तो इसकी यूनिट क्या हुई, एम्पियर पर मीटर. और B की यूनिट हमारे पास में क्या होती है, B इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर. क्लियर? सो यूनिट ऑफ HB इक्वल्स टू A कैंसिल आउट, N अपॉन M स्क्वायर. इज दैट ओके? इफ वी मल्टीप्लाई M here and M here, then we will get Newton meter. Newton meter means joules per meter cube. Okay, so the unit of HB is joule per meter cube. Unit of HB is joule per meter cube. So it represent unit of energy density.
or energy per unit volume. So the area under the curve of any section of hysteresis loop represent the unit of energy density. So it represent the energy. ठीक है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, अब यहाँ पे और एनालिसिस कर रहे हैं, तो और एनालिसिस देखिए. फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग द सेक्शन ए टू बी. अंडर ए टू बी व्हाट हैपन, वर्क एनर्जी 1 equals to what, integration BA to BB H into dB. Is that okay? How? We are considering this section. ठीक है, this section and the integration with respect to dB. So this area we are talking about this area. हम इस एरिया के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है, समझिएगा. तो हम अभी किस एरिया के लिए बात कर रहे हैं, हम इस एरिया के लिए बात कर रहे हैं. ठीक, सो दिस इज एरिया ए बी, दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर डी, ओ एंड ए. We are talking about this area. Clear? So this area. अब इधर पे एक और चीज देख लो, the value of VB, the value of B over point A is BA. It is equals to 0. The value of here VB. ठीक है, यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा, the value of VB is greater than the value of BA. VB is greater than the value of BA. ठीक है, that means W1 is positive. तो W1 is positive क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, it is energy stored in magnetic material. ठीक है, ये हमारे पास में एनर्जी क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है मैग्नेटिक मटेरियल को. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड by magnetic material during magnetization is represented by the area A, B, D, O and A. Clear? Next thing is W2. W2, now we are moving from point B to point C. So VB to BC H of dB. What does it mean? That means area under this curve. So area under this curve, or just represented by the red pen. Is that okay? Clear? So this is area B, D, C and B. Sorry, this area जो भी आप कंसीडर कर सको. तो हमारे पास में क्या है, B, C, D and B. यहाँ हमें क्या दिखाई पड़ा, इधर पे दिख रहा है VB is greater than BC. That means this W2 is reduced, negative, negative. और डायरेक्शन कैसा है, B to C. So it is the energy released by the ferromagnetic material. So W1 is energy stored and W2 is energy released, or energy given back to the system. Energy given back to the system. अब साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहा है there is a difference between W1 and W2. Clearly it is mentioned over there that the value of W1 is greater than the value of W2. यहाँ में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है. तो इधर पे क्या सिचुएशन दी गई है, this difference is responsible for the hysteresis. ठीक, this complete area represent the energy stored by the system. This area represent the energy given back to the system, and this area, which is the area under the
hysteresis loop, that means the area of this much. So this area is what? Is also represent the energy, and this energy is not given to the system. It is dissipated in the atmosphere in terms of heat, and this heat loss is the hysteresis loss. So here the hysteresis loss equals to W1 minus W2, that is area, which area? A, B, C, O and A. So the hysteresis loss is area under the BH loop. ठीक है, ऐसा है हमारे पास में केस होगा. And we are just considering it for the single cycle. There are a number of cycles are there. ढेर सारी साइकिल के लिए यहाँ तो हमने एक सिंगल साइकिल को कंसीडर कर दिया, पर यहाँ क्या है? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली, सो वी हैव टू कंसीडर फॉर ए नंबर ऑफ साइकिल्स ओवर देयर. तो यार ढेर सारी साइकिल्स के लिए हम क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा. सो दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिस्टेरेसिस लॉस. ठीक है, अब हम यहाँ सिचुएशन थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं. देखिए, so over number of cycles, WH equals to area of hysteresis loop. Okay, area of hysteresis loop, and that is equals to area of hysteresis loop का केस joule per meter cube into cycles. ओके, जूल पर मीटर क्यूब इनटू साइकिल्स. अब देखिए, तो WH इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय cycles equals to energy. Energy is power multiplied by time unit. We are just talking about the unit volume. Residual magnetism, we are going to rub this, multiplied by the cycles. Clear? Or we can say that WH equals to power divided by volume multiplied by cycles per second. Okay, power divided by the multiplied by the cycle per second. So if we represent power as pH, volume as V, cycle per second is the frequency. Cycle per second is the frequency represented by F, and this frequency is the not exact same to the frequency of supply. कई बार हमारे दिमाग में होता है F is the frequency of supply. ट्रांसफार्मर का केस है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई बिल्कुल सही है, लेकिन अगर डीसी मशीन्स का केस होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0, तब तो हिस्टेरेसिस का कोई भी कंसेप्ट ही नहीं आना चाहिए. दिस फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ एच. दिस फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ एच. हाउ द वैल्यू ऑफ एच चेंजेस, हाउ द वैल्यू ऑफ एच हमारे पास में चेंज हो रही है, ये उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है. ठीक है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ नहीं होता है, वेरिएशन ऑफ एच का होता है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा. तो इसको हमारे पास में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हम ऐसे लिखेंगे. सो WH इक्वल्स टू pH hysteresis loss multiplied by volume multiplied by F. ठीक है, तो
तो इन वॉट्स द हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल्स टू WH multiplied by V over F, V into F. So this is the expression for hysteresis loss. ये एक्सप्रेशन हमारे पास में हिस्टैरिसीस लॉस का आ गया, लेकिन हमने ये हिस्टैरिसीस लॉस का कभी भी एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ये हिस्टैरिसीस लॉस के एक्सप्रेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ था स्टीनमेट्स ने। उन्होंने ये बताया हुआ था कि WH इक्वल्स टू वॉट, WH हैविंग ए रिलेशन एज WH equals to KH B max raised to the power X, where KH is hysteresis constant. Okay, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, then PH equals to KH B max raised to the power X V into F watts, ठीक है। X is a material dependent constant and the value of X generally varies from 1.5 to 2.5 and in general its value is 1.6. most of the cases में 1.6 रखते हैं। ये भी मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया फॉर हिस्टैरिसीस लॉस के लिए। सो हिस्टैरिसीस लॉस PH इक्वल्स टू दिस वैल्यू, वॉल्यूम वेरिएशन ऑफ H कांस्टेंट and the constant value, maximum value of the flux density. So all the terms in this one is the constant. सारे के सारे टर्म हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये कैसा है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द लोडिंग कंडीशन। I2 का कहीं भी टर्म नहीं आया है, करंट का कहीं भी टर्म नहीं आया है, तो इट डजंट डिपेंड्स ऑन लोडिंग, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट थिंग इज, जो नेक्स्ट हमें याद रखना है लॉस, वो हमारे पास में लॉस होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस भी हमने पढ़ के रखा हुआ है। एडी करंट किसकी वजह से होता है, एडी करंट इज ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स। डेफिनेशन एडी करंट लॉस की क्या होती है, व्हेन एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड और व्हेन एनी मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू द वेरिएबल फ्लक्स कंडीशन, what will happen, a current begin to flow within the surface of that material. That current is known as eddy current, which is distortion in nature and generate heat losses. ठीक है, जिसका काम क्या होता है, डिस्टॉर्शन का काम होता है, डिस्टॉर्टेड काम करती है वो, और वो क्या करती है, हीट जनरेट करने के काम में आती है, ठीक है। तो यहाँ एडी करंट के केस में हमने पढ़ के रखा हुआ है। तो एडी करंट लॉस को फिर से मैं बता देता हूँ, व्हेन एनी material is subjected to a change of flux condition, a current begin to flow at the surface of or within the surface of magnetic material which having distortion in nature and generate the heat losses. That current is known as eddy current and responsible for the heat loss which is known as the eddy current loss, ठीक है। if चेंज ऑफ फ्लक्स कंडीशन होगी तो एक करंट फ्लो करने लगेगी इसके सरफेस पे, तो ये करंट कौन सी बोली जाएगी, एडी करंट बोली जाएगी। एडी करंट लॉस के लिए फॉर्मूला हमें पता है, P इक्वल्स टू KE F स्क्वायर B मैक्स स्क्वायर T स्क्वायर V वॉट। सो इन केस ऑफ एडी करंट we can calculate the amount of eddy current in watt by the mean of this formula, ठीक है। where KE is, KE को देख लीजिए, KE equals to pi square upon 6 into rho, clear। rho is specific resistance or resistivity, so KE is material dependent constant, so KE is material डिपेंडेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट है। Here T is thickness of the material, V again the volume, okay। So P is this value. What if thickness of the material is high, then P is high,
and we have to reduce it. So to reduce it, we have to reduce the value of the thickness. That is the reason why we are using lamination instead of a particular solid core. जब ये ट्रांसफार्मर को देखोगे तो वहाँ लैमिनेशन का यूज़ किया हुआ है. लैमिनेशन को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं ट्रांसफार्मर में. देयर इज़ द वाइंडिंग, कोर इज़ देयर, और कोर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द मीन ऑफ these strips. So this representation, this is the representation of core, and these 2 or 3 lines represent the lamination. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एडी करंट के लिए जितना हम सरफेस देंगे उतनी ही एडी करंट की वैल्यू होगी. उधर पे हमने क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने इसको छोटे छोटे लैमिनेट कर दिया हुआ है. मीन्स बाय द मीन ऑफ लैमिनेशन वी आर डिक्रीजिंग द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द कोर. क्लियर? अभी करंट इतने सरफेस में मूव कर रही थी, अभी करंट के लिए सिर्फ इतना सरफेस बचा हुआ है. ठीक है, तो ये हमारे पास में लैमिनेशन का कंसेप्ट है कि लैमिनेशन हम क्या करते हैं, क्यों यूज़ करके रखा हुआ है. ठीक है, तो लैमिनेशन क्या प्रोवाइड कराता है? लैमिनेशन प्रोवाइड कराता है रिड्यूस वैल्यू ऑफ एडी करंट. क्लियर? तो ये हमारे पास में किसका, एडी करंट का सिचुएशन है. 2 और लॉसेस जो हमें पढ़ने होते हैं ट्रांसफार्मर के केस में, एक लॉस होता है स्ट्रे लॉस और एक हमारे पास में होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस. देख लेते हैं जल्दी से कि स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है. एडी करंट इज प्रोड्यूस इन ईच एंड एवरी मैग्नेटिक मटेरियल पार्ट. मैग्नेटिक मटेरियल जो लिया हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हमने लिया हुआ है ट्रांसफार्मर में, वो सिर्फ कोर में तो एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और भी जितने भी पार्ट हैं वहाँ पे भी एडी करंट का प्रोडक्शन होगा. सो एडी करंट प्रोड्यूस इन वेरियस पार्ट ऑफ मैग्नेटिक material which produces due to the leakage flux produce losses, and these losses are the stray losses. जो लीकेज फ्लक्स की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है वेरियस पार्ट में ट्रांसफार्मर के, वो जो लॉसेस प्रोड्यूस करेगी उसको हम स्ट्रे लॉस कंसीडर करते हैं, माइन्यूट वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डाइलेक्ट्रिक और यूज्ड फॉर लैमिनेशन फॉर कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो वहाँ पे जो भी लॉसेज होंगे दोज आर द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस. सो these are all the term about the losses. ठीक है, तो ये losses के लिए हमारे पास में बात करी हुई है. If you think this information is important to all of you, then please subscribe the channel and like and share the videos. Thank you so much.